Hello, good morning students. In biological classification, still we are having two classes. Okay, till now in biological classification we have seen kingdom Monera, Protista, Mycota, right? In today's class we will take the general characters of kingdom Plantae. Kingdom Plantae general characters we will take. Okay, Plantae. So under kingdom Plantae, also called Metaphyta. What type of organisms are coming under this kingdom? What type of organisms are coming under this kingdom, that we will see here. First point, kingdom Plantae means all the organisms of kingdom Plantae, almost all are autotrophic. Almost all are autotrophic, photosynthetic होंगे. All plants are photosynthetic, that means they prepare their own food. Chlorophyll A bearing organism, chlorophyll A bearing organisms. Okay, that means they have chlorophyll A most common type of chlorophyll, that is chlorophyll A, is present in plant kingdom. Then under Plantae cell wall is present. सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट रहेगा. यस, सेल वॉल इज प्रेजेंट, मेड ऑफ सेलुलोज. किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल होगा यहां पर. ठीक है. एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल हेटेरोट्रॉफिक. दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. सम ऑफ द प्लांट्स are partial heterotrophic. That means they do photosynthesis as well as partially they are eating what other creatures. That means they are doing photosynthesis plus eating insects, both. Some of the plants are partially heterotrophic. One of the best example is insectivorous plants. Insectivorous plants हैं. Insectivorous plants. So that means here in kingdom Plantae partially heterotrophic word use करेंगे हम. Partially heterotrophic means which are preparing their own food as well as eating some of the small insects to get nitrogen. Those are called insectivorous plants or partially heterotrophic organisms. Can we have example for this insectivorous plant? Nepenthes. Nepenthes is also called pitcher plant. Pitcher plant, number one insectivorous plant, pitcher plant. Number two, Venus flytrap. Venus flytrap also called Dionia. Dionia, देखिए ये दो ये प्लांट्स क्या है ना, insectivorous plant है. They eat insects. Why they eat insects? So they eat insects only to get nitrogen, not to get food. They are doing photosynthesis. Insectivorous plant भी खुद अपना फूड बनाते हैं, photosynthesis करते हैं, but they are growing in nitrogen deficient soil. They have high demand of nitrogen. They require nitrogen. For nitrogen, they are eating insects, right? Nepenthes, pitcher plant, Venus flytrap, Dionia बोले. And third example here, Utricularia. Utricularia is also called bladderwort. Bladderwort भी बोल रहे हैं इनको. And out of these students, remember Utricularia, it is the aquatic insectivorous plant. ये कौन सा है? Utricularia aquatic insectivorous है. Aquatic insectivorous. Okay, what is the aquatic insectivorous plant? What should be your answer?
एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट अगर क्वेश्चन आ जाए तो योर आंसर मस्ट बी यूट्रिकुलेरिया, आल्सो कॉल्ड ब्लैडरवर्ट. एंड रिमेनिंग टू नेपेंथीज एंड वीनस फ्लाईट्रैप, दे आर ग्रोइंग इन टेरेस्ट्रियल एरिया. एक्वाटिक भी रहना और इंसेक्टिवोरस भी रहना, तो उसके लिए एग्जाम्पल आएगा ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलेरिया. एंड इन दिस प्लांट स्टूडेंट्स रिमेंबर, leaves are modified into some special structures to trap insects. How they catch insects? Question is how they catch insects. They are catching insects by using their leaves. Modified leaves क्या है इनके पास? Modified leaves हैं, याद रखें. They have modified leaves. Modified leaves. They have modified leaves for catching insects. So what are the points here? Number one, autotrophic, clear है सबको. They prepare their own food by using sunlight and they are photosynthetic. They are having chlorophyll A. Yes, chlorophyll A bearing organism, chlorophyll A having organisms plants हैं. और इनका जो सेल वॉल है किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल है. एंड दे आर सम ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक. बेस्ट एग्जांपल इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. करेक्ट. दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एवरीवन नोट डाउन. एंड ऑल द प्लांट्स दे हैव क्लोरोप्लास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कैरेक्टर, दे हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन देम. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा सारे प्लांट्स में टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे हैव क्लोरोप्लास्ट. ओके. नेक्स्ट कैरेक्टर, ऑल द प्लांट्स हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट एंड वाइस वर्सा, स्पोरोफाइट मेकिंग गैमेटोफाइट. अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, और फिर स्पोरोफाइट से अगर गैमेटोफाइट बनेगा, देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस अल्टरनेशन? गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड दिस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इफ इट मेक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट. इफ गैमेटोफाइट मेक द स्पोरोफाइट and in reverse sporophyte also make the gametophyte. गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. गैमेटोफाइट मेकिंग स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट मेकिंग गैमेटोफाइट. से फॉर एग्जांपल गैमेट्स, मेल गैमेट इज हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट इज आल्सो हैप्लॉइड. If both the gametes are fusing, N plus N, मेल गैमेट हैप्लॉइड होगा N, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होगा N. अगर दोनों गैमेट अगर फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बनेगा? 2N, जाइगोट बनेगा ना. सो यहां पर जाइगोट स्पोरोफाइट का पार्ट हो गया. डिप्लॉइड इज स्पोरोफाइट पार्ट, हैप्लॉइड इज गैमेटोफाइट. अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, that condition we call it alternation of generation. क्या बोलेंगे इसको? alternation of generation बोलेंगे. गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट. remember what are the gametophytic structures in plant body? pollen grain are gametophytic, gametes are gametophytic. जितने भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, दोज आर गैमेटोफाइट. और जिनमें क्रोमोसोम नंबर डबल है, 2N है, दोज आर स्पोरोफाइट. क्लियर है? यस. एंड सम ऑफ द प्लांट्स आर पैरासाइटिक आल्सो. पैरासाइटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें, पैरासाइटिक प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल है कस्कुट्टा. पैरासाइटिक प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल है कस्कुट्टा. दिस इज व्हाट ए प्लांट नॉट हैविंग एनी क्लोरोफिल. एक क्लोरोफिलस प्लांट है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं है. इट इज डिपेंडेंट ऑन टोटली अदर प्लांट्स फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन. दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहेगा ये
फूड और न्यूट्रिशन के लिए। तो दिस इज व्हाट कस्कुटा पैरासाइटिक प्लांट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, इन प्लांट्स वी गेट टू कैटेगरीज, वन इज क्रिप्टोगैम्स। व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लांट को फ्लावर नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलेंगे हम क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे, ठीक है। एंड बेस्ट एग्जांपल नॉन फ्लावरिंग प्लांट के एग्जांपल अगर आप पूछेंगे, सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स की अगर हम बात करेंगे, दीज आर व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फेनेरोगैम्स है फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्रिप्टोगैम्स कैसे प्लांट है? नॉन फ्लावरिंग, जिसको फ्लावर नहीं है, और जिसको फ्लावर है वो फेनेरोगैम्स है, ठीक। चलो अभी यहां पर देखो, अलगे, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, कुछ प्लांट्स हैं यहां पर, अलगे, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, ये वाले प्लांट्स को हम बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलेंगे इनको? क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी फ्लावर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये दो प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दीज आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। क्या बोलेंगे इनको? फेनेरोगैम्स बोलेंगे। देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या बोल रहे हैं हम? फेनेरोगैम्स बोलेंगे। और अलगे, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। नोट कर लेना पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय दिस स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको सीड होते हैं ना, सीड बियरिंग प्लांट। सारे प्लांट्स को सीड नहीं होते स्टूडेंट्स, some plants are having seed and they are belonging to the group spermatophyta, and best example of spermatophyta is gymnosperm and angiosperms. These are called spermatophyta also, ठीक है। spermatophyta seed bearing plant, gymnosperm and angiosperms, नोट कर लीजिए ये। ओके, तो अब हम जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम। देखिए, प्लांट किंगडम एक पूरा टॉपिक आने वाला है, प्लांट किंगडम, नेक्स्ट चैप्टर। इन दैट वी विल सी डिटेल्स ऑफ अलगे, डिटेल्स ऑफ ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ईच एंड एवरी ग्रुप के कैरेक्टर्स एंड देयर एग्जांपल्स वी हैव टू सी। सिमिलरली वी हैव अनदर चैप्टर एनिमल किंगडम आल्सो। एनिमल किंगडम के यहाँ पर एक जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, कुछ जनरल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं अंडर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सम जनरल कैरेक्टर्स आर गिवन फॉर एनिमल किंगडम। लेट्स सी नंबर 1 पॉइंट, एनिमल किंगडम दे आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑटोट्रॉफिक, दे आर हेटेरोट्रॉफिक ही होंगे, हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि ये फूड नहीं बना सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन। सारे एनिमल किंगडम यूकैरियोटिक होंगे। सारे एनिमल किंगडम के मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। एंड इन केस ऑफ एनिमल किंगडम व्हाट इज प्रेजेंट? न्यूरोमोटर फंक्शंस, neuromotor functions are present. That means they have nervous system plus muscular system for locomotion. Nervous system include they are having what? Brain,
स्पाइनल कॉर्ड ये नर्वस सिस्टम है, और इनका जो मस्कुलर सिस्टम है दैट इज हेल्पिंग फॉर लोकोमोशन, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन in most of the animals. बहुत सारे एनिमल्स क्या है, लोकोमोशन करते हैं. दैट मीन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, मेट और गेटिंग बेस्ट रिसोर्सेस टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स. दे आर डूइंग लोकोमोशन. बट देर आर सम एनिमल्स विच आर रिमेन फिक्स एट वन प्लेस ऑल्सो. कुछ एनिमल्स हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, नॉट मूविंग एट ऑल थ्रू आउट द लाइफ. दे आर नॉट डूइंग लोकोमोशन एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड सेडेंटरी. सेडेंटरी एनिमल्स बोल रहे हैं उनको. सेडेंटरी एनिमल्स मीन्स रिमेन फिक्स्ड, रिमेन फिक्स एट वन प्लेस. जो बस एक ही जगह पे रहते हैं, नॉट डूइंग लोकोमोशन, remain fixed at one place, they are called what type of animal? Sedentary animals बोलेंगे इनके. क्या बोलेंगे ऐसे एनिमल्स को? Sedentary animal, remain fixed at one place. And next character animal kingdom का. Okay, animal kingdom is divided into invertebrates, and chordates. Invertebrate mean the animal without notochord, without backbone. जो एनिमल को नोटोकॉर्ड नहीं है, बैकबोन नहीं है, वो इन्वर्टिब्रेट के ग्रुप में आ रहे हैं. नॉट हैविंग नोटोकॉर्ड, नॉट हैविंग नोटोकॉर्ड. अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो इन्वर्टिब्रेट बोलो. कॉर्डेट्स आर हैविंग नोटोकॉर्ड. कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड है, हैविंग नोटोकॉर्ड. इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, अगर नहीं है नोटोकॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट बोले उसको. इन्वर्टिब्रेट बोलो या नॉन कॉर्डेट बोलो. फर्दर दिस इन्वर्टिब्रेट अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइलम्स, है ना. आप सेकेंड ट्रैक में पढ़ रहे हैं, जोलॉजी ट्रैक में पढ़ भी रहे हैं. Invertebrates are divided into different phylums like phylum Porifera, phylum Coelenterata, Platyhelminthes, Ascalmenthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. ये सब एनिमल्स के इन्वर्टिब्रेट के फाइलम्स हैं, ग्रुप्स हैं. करेक्ट. एंड कॉर्डेट्स आर दोज एनिमल विच आर हैविंग नोटोकॉर्ड. एंड नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स क्या कर रहे हैं? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये होंगे कॉर्डेट्स. कुछ एग्जाम्पल यहां पे लिखेंगे हम, जैसे पोरीफेरा बोल के लिखेंगे. इन्वर्टिब्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल. पोरीफेरा, व्हाट इज पोरीफेरा? पोर बियरिंग एनिमल्स, है ना. पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स. एनिमल्स विच आर हैविंग सेवरल पोर्स ऑन देयर बॉडी. Those are also called ostia. You know, water current is there, water flow is there through those ostia, continuously water in and out. Spongilla, sponges, these are the organisms of Porifera. पढ़े होंगे आप. Spongilla is the only fresh water sponge बोल के पढ़े होंगे. Coelentrates किसको बोलेंगे? Coelentrates are those invertebrates which are having stinging cells. What they are having? Stinging cells. Yes, they are having stinging cells, poison containing cells, and those poison containing cell they can inject their poison. ये poison inject कर सकते हैं into the host body. Stinging cells बोल रहे हैं coelentrates को. पोरीफेरा को पोर बियरिंग एनिमल, coelentrates को. coelentrate का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? स्टिंगिंग सेल्स हैं. और क्या है देखिए यहाँ पे? टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोरा में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? बायोलुमिनिसेंस. बायोलुमिनिसेंस मीन्स लाइट एमिशन. दे एमिट लाइट, लाइट एमिटिंग ऑर्गेनिजम्स.
चमकने वाले हैं ना, रात में लाइट एमिट करते हैं बहुत ज़्यादा, टीनोफोरा बोल रहे हैं उनको। फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस बोल के एक ग्रुप आ रहा है इन एनिमल किंगडम, इनवर्टिब्रेट ग्रुप में प्लैटीहेल्मिन्थेस आल्सो कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिज्म। डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों साइड फ्लैट होंगे, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सल एंड वेंट्रल बोथ द साइड्स आर फ्लैट। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड अगर फ्लैट रहेंगे तो इनको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस को। क्लियर है? तो देन अस्कियलमेंथिस, अस्कियलमेंथिस को आप क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। वाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स? बिकॉज दे आर राउंड इन शेप इन क्रॉस सेक्शन। इनका जब एनिमल को क्रॉस सेक्शन कट करके देखते हैं तो राउंड शेप आते हैं अस्कियलमेंथिस। ठीक है। एनेलिडा, एनेलिडा का मेन कैरेक्टर होता है ना मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एनिमल किंगडम फाइलम एनेलिडा में मेटामेरिज्म है। व्हाट इज मेटामेरिज्म? लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। अगर बॉडी सेगमेंट्स सीरियली अगर रिपीट होते जाते हैं, सेम टाइप ऑफ सेगमेंट इफ दे आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स वी कॉल मेटामेरिज्म। अगर कोई एनिमल है इस टाइप का जिसमें बॉडी सेगमेंट्स रिपीट हो रहे हैं सेवरल टाइम्स, तब हम बोलते हैं उसको एनेलिडा। क्या बोलते हैं? एनेलिडा बोल रहे हैं, मेटामेरिज्म। एनेलिडा के बाद आइए नेक्स्ट ग्रुप में आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर दोज एनिमल्स विच आर हैविंग जॉइंटेड लेग्स। Yes, they are having jointed legs. The invertebrate which are having jointed legs or jointed appendages, these are arthropoda. Mollusca, mollusca क्या होते हैं? देखिए, mollusca are soft bodied animals. Mollusca are soft bodied animals covered by shell. Covered by shell, हाँ, शेल होता है बॉडी के ऊपर कवर इनके, मलुस्का। फिर मलुस्का के बाद जा रहे हैं नेक्स्ट एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एकाइनो मीन्स स्पाइनी, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स है ना, बहुत सारे स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं इनके, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। सो मेनी ग्रुप्स ऑफ invertebrates, these are all invertebrates. So we started discussing characters of animal kingdom, general characters. Anyhow, separate chapter is there in which you are going to discuss each and every phylum in detail. You are going characters and example. So here just general character. Animal kingdom eukaryotic होते हैं, multicellular होते हैं। देखिए, there is no unicellular animal. All animal kingdom members are multicellular compulsory and they are heterotrophic compulsory. न्यूरोमोटार फंक्शंस इनमें प्रेजेंट रहेंगे, नर्व्स प्लस न्यूरॉन प्लस और यू कैन से नर्वस सिस्टम प्लस मस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन। न्यूरोमोटार फंक्शन बोल रहे हैं। कैपेबल ऑफ लोकोमोशन इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। सेडेंटरी एनिमल रिमेन फिक्स एट वन प्लेस। एग्जाम्पल, सेडेंटरी एनिमल का कोई एग्जाम्पल है तो बता दो जो एक ही जगह रहता है। Sponges are the example. Sponges are the sedentary animal. Invertebrate not having notochord, chordates having notochord. और उसके बाद में invertebrate के phylums के नाम बताया। And there is one more phylum here invertebrate में, that is Hemichordata. Hemichordata was what earlier considered as chordata. It was earlier considered to be a chordate, but later on it was discovered that it is not having all the chordate characters, so it is kept separately in invertebrates. अभी ये invertebrate का ही पार्ट है। Hemichordata
इनवर्टिब्रेट का ही फाइलम होगा। हेमिकॉर्डेट्स आर हैविंग ट्यूब लाइक बॉडी, ट्यूबुलर एलोंगेटेड एनिमल्स एंड एक्सक्लूसिवली मरीन, मरीन होते हैं, सी वाटर में मिलेंगे। ट्यूबुलर elongated, tubular elongated, tube like elongated मरीन एनिमल्स में काउंट करते हैं इनको, हेमिकॉर्डेट्स को। मरीन एनिमल, ट्यूबुलर एलोंगेटेड मरीन एनिमल्स कम अंडर हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट ग्रुप में आ रहे हैं, ट्यूबुलर एलोंगेटेड मरीन एनिमल्स में हेमिकॉर्डेट्स। नोट करिए पॉइंट्स। ओके, अब हम कॉर्डेट्स में अगर जा रहे हैं, कॉर्डेट्स में अगर जा रहे हैं, कॉर्डेट्स में एनिमल्स विद बैकबोन, अंडर कॉर्डेट यू विल गेट हियर फिशेस, ठीक है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। These are what? Chordates. Chordates में आ रहे हैं। Fishes, they are totally aquatic. Amphibians, they are moving in both the places, water and on land. Reptiles, they are terrestrial creatures, है ना, having hard skin with scales on their body. Fishes में क्या है बोलो? Aquatic है, totally aquatic. Fresh water, marine water दोनों में मिल रहे हैं। Amphibians, they require water for fertilization. इनको चाहिए वाटर, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, तो एम्फीबियंस बोले। ओके, फिशेस तो टोटली एक्वाटिक ही होंगे, फिशेस आर टोटली एक्वाटिक, 100% ऑल फिशेस। एम्फीबियन को चाहिए वाटर, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली। रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स हैं, दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ हार्ड स्केल्स ऑन देयर बॉडी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ हार्ड स्केल्स ऑन बॉडी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये, रेप्टाइल्स विथ हार्ड स्केल्स ऑन बॉडी। बर्ड्स जो होंगे इनमें होते हैं फेदर्स, birds are having feathers on their body, and mammals are having a very unique character, that is presence of hairs, mammary gland and pinna. इनमें hairs हैं, mammary glands हैं for the nourishment, for secreting milk for the newborn babies. Mammary glands, milk secreting glands को बोल रहे हैं mammary glands. And they are also having pinna. Pinna is nothing but external ear. इनका जो external ear है mammals का, that is pinna. Remember, these are what characters of animal kingdom. And remember, animals perform sexual reproduction. They have a process called copulation. Copulation. Animals have copulation, that is sexual intercourse. Sexual intercourse. Male and female animals, they undergo copulation, and after copulation the female either egg laying होते हैं या नहीं तो they give birth. That means oviparous भी हो सकते हैं animals, viviparous भी हो सकते हैं। oviparous किसको बोलेंगे? egg laying animals को बोल रहे हैं। एनिमल्स में egg laying भी मिलेगा या नहीं तो viviparous भी। viviparous means giving birth,
which gives birth viviparous and which lay eggs oviparous. जो eggs दे रहे हैं oviparous and which gives birth viviparous. Okay students, these are the characters, general characters of animal kingdom. Okay, take down these points. After this, we are having certain organisms here like lichens, virus, viroid, prions. ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में चैप्टर के एंड में लिखा हुआ है. तो ये लाइकेंस क्या है? लाइकेंस आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मेड ऑफ अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर. अलगल प्लस फंगल पार्टनर. अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर. दो पार्टनर से मिलके बनता है लाइकेन. देखिए यहां पर अलगल पार्टनर को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट. अलगल पार्टनर इज आल्सो कॉल्ड फाइकोबायोंट एंड फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायोंट. ठीक है स्टूडेंट्स, लाइकेंस क्या है? दीज आर सेलुलर और ए सेलुलर. ओल्ड एनसीईआरटी में इसको ए सेलुलर लिखा था, फिर करेक्शन हुआ है न्यू एनसीईआरटी में. लाइकेंस आर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनमें भी सेल होते हैं एंड दे आर फॉर्म बाय द पार्टनरशिप बिटवीन अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर. दो पार्टनर मिलके होते हैं. अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर दोनों मिलके रहते हैं, तब मिलते हैं लाइकेंस. क्या बनते हैं? लाइकेंस बनते हैं. अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर. एंड लाइकेंस आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी किंगडम. लाइकेंस नॉट बिलोंगिंग टू एनी किंगडम. ये कौन से भी किंगडम में नहीं आते हैं. यस, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द किंगडम. कौन से भी किंगडम में नहीं आते हैं बिकॉज दीज आर हैविंग व्हाट टू पार्टनर्स. अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर दोनों मिलके हैं ना, तो दोनों मिलके रहने की वजह से यहां पर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द किंगडम. सम ऑफ द साइंटिस्ट दे सेज इसमें अलगल पार्टनर है, तो अलगल पार्टनर मीन्स प्लांट किंगडम में रखेंगे. एंड सम ऑफ द साइंटिस्ट सेज ये फंगल पार्टनर है तो माइकोटा में रखेंगे. दैट्स वाई देयर इज ए कंफ्यूजन लाइकेंस वेयर टू प्लेस, वेदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. लॉट ऑफ कंफ्यूजन. दैट्स वाई लाइकेंस को कौन से भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किए. नेक्स्ट, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन. सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन. ये एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, SO2 के साथ. सल्फर डाइऑक्साइड. दैट मीन्स if your city is having sulfur dioxide in air, that means in your city lichens are not growing, because lichens are very much sensitive to sulfur dioxide gas. Any area which is having sulfur dioxide, in that area lichens are unable to grow. तो lichens को हम क्या बोले? सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन. सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. lichens को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. lichens आर कॉल्ड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन बोल सकते हैं. सो lichens ऑलवेज ग्रो in unpolluted city. They are unable to grow in polluted city. Lichens grow कहाँ हो रहे हैं? Lichens grow in unpolluted city and grow only in polluted city. और सॉरी, यहाँ पे lichens क्या बोलना चाहिए? Lichens grow only in unpolluted areas. अब अनपोल्यूटेड एरियाज मतलब जैसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं. ओके, लाइकेंस ग्रो कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं? ग्रो इन अनपोल्यूटेड सिटीज.
अनपॉल्यूटेड एरियाज, polluted areas में ग्रो नहीं होते lichens. And there are two partners, algal partner plus fungal partner. How these algal partner and fungal partner divide their work and how it will be a beneficial interaction for both of them, ये एक देखना है पॉइंट. सबसे पहले lichen is an example of mutualism. lichen is an example of mutualism. और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है ना, algal partner and fungal partner both are mutually benefiting each other. If two partners are mutually benefiting each other, two partners mutually benefit each other, two partner mutually benefit each other. म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है टू पार्टनर्स, जैसे अलगे प्लस फंजाई, टू पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, बोथ द पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर. इसको बोलते हैं ना प्लस प्लस बोलते हैं. मतलब एक पार्टनर को प्लस मतलब बेनिफिट हो गया, दूसरे पार्टनर को भी बेनिफिट हुआ तो प्लस, टू टाइम प्लस. ओके, एंड अलगल पार्टनर हियर इज डूइंग व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फूड. Work distributed among the algal partner and fungal partner. Let's see how that work is distributed. Algal partner is responsible for preparation of food and fungal partner is responsible for absorption, protection. ठीक है, absorb करना, protection देना, ये fungal partner का काम है. यहाँ पे लिखे हम algal partner का work लिखेंगे. ठीक है, अलगल पार्टनर का वर्क लिखे. अलगल पार्टनर क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड करना है. और फंगल पार्टनर क्या करना है, फंगल पार्टनर प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, ये फंगल का काम है. प्रोटेक्शन देना, अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, ये फंगल का काम. सो अलगल पार्टनर फाइकोबायोंट और फंगल पार्टनर माइकोबायोंट. और लाइकेंस कहाँ ग्रो हो रहे हैं, लाइकेंस ग्रो ओनली इन अनपोल्यूटेड एरियाज. अगर आपके सिटी में बहुत सारा एयर पोल्यूशन है या सल्फर डाइऑक्साइड क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इन योर सिटी लाइकेंस आर नॉट ग्रोइंग. इससे पता चलता है वेदर सिटी इज पोल्यूटेड और नॉट पोल्यूटेड. दैट्स वाई लाइकेंस को हम क्या बोले, इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, इसलिए बोले इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. ये था लाइकेंस के बारे में. आफ्टर लाइकेंस हम जा रहे हैं वायरस टॉपिक में. व्हाट आर वायरसेस? नंबर 1 पॉइंट, viruses are nucleoprotein particles. Viruses are nucleoprotein particles हैं. न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दो मिलाकर न्यूक्लियोप्रोटीन हो रहे हैं. एंड ऑल द वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दैट मीन दे आर सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन इवन इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. दे आर सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ऑब्लिगेट, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. वायरसेस क्या होते हैं ना, ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं. स्ट्रिक्टली पैरासाइटिक, इंट्रासेलुलर पैरासाइटिक. इंट्रा मीन्स विद इन द सेल. इंट्रा मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर रहने वाले. स्ट्रिक्टली, ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्टली सेल के अंदर रहने वाले. पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मीन दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट बॉडी. ये होस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे. दे कैन नॉट ग्रो फ्रीली, दे आर पैरासाइटिक.
इंट्रा सेलुलर का मतलब है ना, दे आर फाउंड ओनली विद इन द होस्ट सेल, फाउंड विद इन द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, विद इन द होस्ट सेल। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइटिक बोले ये कंडीशन को, ठीक है। नेक्स्ट, वायरसेस हैव प्रोटीन कवर, वायरसेस का जो प्रोटीन कवर होगा दैट विल बी कॉल्ड कैप्सिड, वायरसेस का जो प्रोटीन कवर है उसको हम कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है। एंड इट्स यूनिट्स को क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर्स। मतलब वायरसेस के ऊपर है ना क्या है, प्रोटीन का कवर आता है, देयर इज ए प्रोटीन कवर ऑन वायरस, एंड व्हाट डू यू कॉल दैट प्रोटीन कवर, कैप्सिड बोल रहे हैं। वायरसेस में पहले यहाँ पे सेंटर में डीएनए या आरएनए होगा, उसके ऊपर प्रोटीन का कवर होगा। देखिए ये डीएनए या नहीं तो आरएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है, डीएनए और आरएनए। एंड दे हैव ए प्रोटीन जैकेट, व्हाट डू यू कॉल दैट प्रोटीन जैकेट, कैप्सिड। कैप्सिड इज प्रोटीन कवर, कैप्सिड इज प्रोटीन कवर एंड विद इन द वायरस वी फाइंड आइदर डीएनए और आरएनए। प्रोटीन कवर कैप्सिड है, और कैप्सिड किससे बना हुआ है, कैप्सोमियर से बना हुआ है, याद रखें। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज ईदर डीएनए, या तो वो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज ईदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक, या तो डीएनए या तो आरएनए रहेंगे। नोट करिए पॉइंट्स ये। ओके, इट इज ईदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए यहां पे कुछ वायरसेस के नाम बता रहा हूं मैं, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस क्या होता है, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस आरएनए वायरस होता है। देखिए इट इज आरएनए वायरस, इट हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है टीएमवी के अंदर, टोबैको मोजाइक वायरस, एंड इट इज रॉड शेप वायरस, रॉड शेप वायरस होता है ये। इफ यू ड्रॉ इट, एक रॉड शेप वायरस है, इसकी प्रोटीन जैकेट होती है, व्हाट डू यू कॉल दैट प्रोटीन जैकेट, कैप्सिड बोलते हैं। ऐसा दिखता है एक वायरस ये टीएमवी, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टीएमवी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, देखिए। एंड एट द सेंटर ऑफ दिस टीएमवी वी विल फाइंड ए स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, बिकॉज टीएमवी इज व्हाट टाइप ऑफ वायरस, आरएनए वायरस। तो ये जो प्रोटीन जैकेट है इसका नाम क्या है, कैप्सिड है, ये प्रोटीन जैकेट का नाम कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर जो यूनिट्स हैं दोज यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स हैं, कैप्सोमियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस बोल रहे हैं टीएमवी। देयर इज अनदर वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, bacteriophage. So what is bacteriophage? The virus which infects bacteria, the virus which
इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या बोले हम, बैक्टीरियोफेज बोल रहे हैं। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स दे आर इन्फेक्टिंग, दे आर ईटिंग बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज और दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इन टुडेज क्लास वी हैव सीन कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के कैरेक्टर्स कवर करें हम। सो प्लांट किंगडम में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, अलगे, ब्रियोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंड देन एनिमल किंगडम के कैरेक्टर्स लिए, एनिमल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एनिमल कैरेक्टर में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है न्यूरोमोटार फंक्शन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में ना तो नर्वस सिस्टम है और ना ही मस्कुलर सिस्टम है, लेकिन एनिमल्स में दोनों है, न्यूरॉन भी है, नर्वस सिस्टम भी है, प्लस मस्कुलर सिस्टम भी है प्लांट्स में। ओके, एंड देन वी हैव सीन आफ्टर एनिमल किंगडम कैरेक्टर्स वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस लाइकेंस। लाइकेंस बताया मैं आपको, अलगल पार्टनर और फंगल पार्टनर से बने होते हैं। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। बोल तो आप क्या आंसर लेने वाले हैं, इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन बोल तो कंपल्सरी यू शुड टेक द आंसर लाइकेंस। एंड लाइकेंस में स्पेशली दे आर सेंसिटिव टू विच गैस, दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोलना है, ठीक है। एंड वायरस टॉपिक अभी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी दिस लास्ट क्लास फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। We will complete this chapter in next class. Thank you.